Good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new video. In this lecture, I am going to solve each and every question of the exercise 5.4 class 11 chapter 5 from the element mathematics. So if you are studying from the NCERT, so this exercise belongs to basically exercise 5.3 modulus amplitude form. So what I am going to discuss in this lecture, firstly I am going to take its basic concepts that will help you to crack the competitive exam like NDA as well as JEE, or you can this will help you in your higher mathematics. Whenever you take mathematics in your graduation, that it will be help you. So this topic is very important. So I hope you listen to me very carefully and watch the video from start to the end. So let's begin our topic. First topic is what? Argand plane. So topic number is 1. Argand plane. So before to start the Argand plane, आपको दूसरा प्लेन भी पता है, कार्टेशियन प्लेन. तो जब मैं बात करता हूँ कार्टेशियन प्लेन की, what is Cartesian plane? The plane which is drawn from the x-axis and y-axis basically called the Cartesian plane. जो आप ग्राफ पेपर ड्रॉ करते आ रहे हो वो क्या होता है? आपका कार्टेशियन प्लेन होता है. तो अब हम कार्टेशियन प्लेन में ही क्या ड्रॉ करेंगे? आर्गेंट प्लेन. सो समथिंग डिफरेंस कुछ नहीं है. क्या डिफरेंस है आप ध्यान दीजिए. सबसे पहले मैं कार्टेशियन प्लेन को एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जब आप ग्राफ पेपर ड्रॉ करते हो, whenever you draw the graph paper, this axis is what? This is basically your x-axis, and this is what? Your y-axis. Or whenever you have to draw a point or you have to mark a point, for example, point is what? 2,3. You have to mark it on the graph paper. How you will mark? Firstly, you have to take a division or block. One block is what? Suppose I'm taking one block as a 1 centimeter, then 1, 2, 3, 4 and so on. This is your positive x-axis, and this is what? This is your negative x-axis. So this is what? This is what? This is called origin. This is called origin, and the coordinate of origin is what? 0, 0. Please remember, the coordinate of the origin is always 0, 0. Same when I was talking about in y-axis. Same, this is positive y-axis and this is what? Negative y-axis. So this is 1, 2, 3, 4 and so on. Same here. This is what? -1, -2, -3, -4. And you have to locate a point 2, 3. So what is 2? 2 indicate basically the values of x. This indicate x is equal to 2 and y is equal to 3. It means you have to go 2 step in x direction. So start from the origin. 2 step go. This you comes at the point 2. Now you have to go 3 step in y direction. So this is what? 1, 2, 3. So you reach this point. Suppose I am giving this name as a A. A is what? 2, 3. तो आपने इसको मार्क किया. अब हम बात करते हैं आर्गेंट प्लेन की. ये दिस इज व्हाट? दिस इज बेसिकली योर कार्टेशियन प्लेन. बट हम बात करेंगे अब आर्गेंट प्लेन की. अब आर्गेंट प्लेन को कैसे मार्क करते हैं उसको ध्यान से समझिएगा. आर्गेंट प्लेन है क्या चीज? सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में बात करेंगे. तो जो आपकी एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करती है रियल एक्सिस. सो दिस इज व्हाट? दिस इज एक्स एक्सिस इज रियल एक्सिस, and this is y-axis represent your imaginary axis. So same, this is positive real, this is negative real, this is positive imaginary, this is negative imaginary. Now you have to represent a complex number which is in terms of Cartesian form. So आपका एक टॉपिक क्या है? सबको आपको कन्वर्ट करना है कार्टेशियन प्लेन कार्टेशियन फॉर्म इनटू पोलर फॉर्म और पोलर फॉर्म इनटू कार्टेशियन फॉर्म. So what is Cartesian form and what is polar form? Please make a look. Next topic is what? First is Cartesian
form, and third one is what? Polar form. For example, I am taking an example of a complex number. Let z is equal to 2 plus 3 iota. This is what? This is your complex number, or this form is basically called the Cartesian form. So this is what? This is your Cartesian form. And Cartesian form is also called the rectangular form. So also remember, Cartesian form is also called rectangular form. So whenever the question comes to represent this complex number as in terms of Cartesian plane or Cartesian form or rectangular form, it means you have to represent in terms of like this. This is what? This is your representation of a complex number in Cartesian form or rectangular form. बट अब आपको डिस्कस क्या करना है? पोलर. इसको तो आप लोकेट कर सकते हो इजीली. 2 plus 3 iota indicate what? It indicates that your real part is what? Your real part of the complex number is 2, and your imaginary part of the complex number is what? 3, because iota is not included. Iota basically indicate that this part is your imaginary part. So imaginary part is 3 and real part is 2. So you have to go 2 step in the real axis. So 1, 2, and 3 step goes to the imaginary axis. So 1, 2, 3. So you will reach at the point A. So I represented a complex number in this Cartesian plane. बट अब आपको बात किसकी करनी है? आर्गेंट प्लेन की. So आर्गेंट प्लेन बेसिकली रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म. सो व्हाट इज, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, हम किसकी बात कर रहे हैं? आर्गेंट प्लेन बेसिकली मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म. तो आपको जो रिप्रेजेंट करना है आर्गेंट प्लेन में वो मॉडुलस और एम्पलीट्यूड के टर्म्स में करना है. तो आपको डिफाइन करना होगा व्हाट इज एम्पलीट्यूड एंड व्हाट इज मॉडुलस. तो मॉडुलस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय, आई मेंशन हियर, मॉडुलस इज रिप्रेजेंटेड बाय z विद पैरेलल लाइन. आप पहले डिस्कस कर चुके हैं इन एक्सरसाइज 5.3. we have to find out the modulus. So we did so many questions based on the modulus concept. So modulus is represented by z, or most commonly is also represented by a letter which is r. तो जब भी आपको r दिखाई देता है, स्मॉल r किसके लिए यूज करते हैं? मॉडुलस के लिए. तो आप z पैरेलल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो मॉडुलस को, और r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. किसको कर सकते हो? मॉडुलस को. नाउ अब आपको मेंशन करना है इस डायग्राम में r कहाँ है. तो r is what? Basically the length of the joining the points origin with the point. So आप origin और point को join करिए, आपको एक लाइन मिलेगी. So this is your origin and this is your point. So इसको join कर लीजिए. So this is what? This is OA. So यहाँ पे जो OA है, this is what? क्या है? मॉडुलस. तो जो OA की लेंथ है वो इंडिकेट क्या करेगी? आपकी मॉडुलस को. मॉडुलस को कॉमनली किससे रिप्रेजेंट करा मैंने? R से. तो आप Z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, Z पैरेलल विद पैरेलल लाइंस, और आप R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. नाउ सेकंड वन इज व्हाट? एम्पलीट्यूड. अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज द एंगल मेकिंग विद द पॉजिटिव x एक्सिस. सो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड मींस व्हाट? थीटा. तो मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं, आपको बेटर में से क्लियर होगा. Modulus means r and amplitude means what? थीटा. इसका मतलब आर्गेंट प्लेन में आप किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हो? r और थीटा के टर्म्स में. सो दिस इज व्हाट? दिस इज योर r. अब आपको थीटा को रिप्रेजेंट करना है. थीटा इज द एंगल कंस्ट्रक्टेड विद द पॉजिटिव x एक्सिस विद द मॉडुलस लेंथ. सो दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल, एंड दिस इज व्हाट? Theta, and theta is called amplitude. So this is what? Amplitude, and this is what?
मॉडुलस. So this form is basically called modulus amplitude form. तो आपको इस क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ लाइक 2 + 3 आयोटा एक कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है, तो आपको किसका आंसर निकालना है. आंसर यू हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ r और थीटा. तो जब आप आंसर r और थीटा के फॉर्म में निकालते हो तो उस फॉर्म को क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म. आई होप आपको इस चार चीजें कॉन्सेप्ट समझ आएगी. मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. कार्टेशियन प्लेन बेसिकली योर एक्स एंड वाई एक्सिस प्लेन. सो जब आप किसी पॉइंट को प्लॉट करते हो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, दिस इज व्हाट कार्टेशियन प्लेन. जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा. सो 2 इज बेसिकली योर रियल पार्ट एंड 3 इज व्हाट इमेजिनरी पार्ट. सो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है या सिंपल एक्स एक्सिस उसको आप रियल एक्सिस कहते हैं और वाई एक्सिस को क्या कहते हो, इमेजिनरी एक्सिस. तो जब इस टाइप से आप प्लेन कंस्ट्रक्ट करते हो तो वो आपका प्लेन कौन सा काम करता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन. सो इन कॉम्प्लेक्स प्लेन में जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ऐसे ही नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है. तो पॉजिटिव रियल एक्सिस, नेगेटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज योर आर्गेंट प्लेन. लेकिन आर्गेंट प्लेन का दूसरा नाम होता है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म. सो दिस इज व्हाट मॉडुलस एम्पलीट्यूड. एंड मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हो r से और एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हो थीटा से. r क्या होता है, r इज व्हाट मॉडुलस एंड थीटा इज व्हाट एम्पलीट्यूड. तो जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, दिस फॉर्म इज बेसिकली कॉल्ड द कार्टेशियन फॉर्म. और कार्टेशियन फॉर्म का दूसरा नेम क्या होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म. सो जब आपको कुछ क्वेश्चन में कहा जाए कि फाइंड आउट करो इट्स रेक्टेंगुलर फॉर्म या इट्स कार्टेशियन फॉर्म, तो आपको इस फॉर्म में आंसर लिखना है. जब क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको कन्वर्ट करो इनटू पोलर फॉर्म, अब पोलर फॉर्म क्या होती है, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म. इट मींस आपको आंसर इन टर्म्स ऑफ इस फॉर्म में नहीं रखना, आंसर रखना है इन टर्म्स ऑफ r और थीटा के टर्म्स में, जिसमें आप डिफाइन कर सको कि r क्या है और थीटा क्या है. वो फॉर्म क्या है आपकी, पोलर फॉर्म. वी विल डिस्कस. तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम समझिए कि क्या होता है. फॉर एग्जांपल दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म. सो 2 + 3 आयोटा मींस द रियल पार्ट इज 2 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 3. सो यू हैव टू गो 2 step in real axis. So this is 1, this is 2, and 3 step in imaginary axis, 1 2 3. So you got a point A. आपने इस पॉइंट को मार्क किया. अब उस पॉइंट को ओरिजिन से मीट कराइए तो आपको एक लेंथ मिलेगी एंड लेंथ रिप्रेजेंट बेसिकली योर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी. जैसे ही कोई भी क्वांटिटी है, जैसे 2 + 3 आयोटा, फॉर एग्जांपल आप फोर्स की बात कर रहे हो, किसी भी क्वांटिटी की बात कर रहे हो, तो ये उसको क्या दे देगी, उसका आपको मैग्नीट्यूड देगी. और जो आप ये लाइन है मैग्नीट्यूड लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाएगी वो क्या होता है आपका, एम्पलीट्यूड. और एम्पलीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से. सो आपका जो पोलर फॉर्म की बात करते हैं, इस पोलर फॉर्म को लिखने का एक वे होता है जिसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, r एंगल थीटा. जब आपको कहीं दिखाई देता है r एंड थीटा, दिस फॉर्म इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड दिस फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड द पोलर फॉर्म. सो आंसर इज व्हाट, पोलर फॉर्म. आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी. सो प्लीज मेक अ नोट वेरी केयरफुली and mention and clearly it in your mind. So please remember this. Take a screenshot. Now please look at this is our what, argent plane. आपने r भी मेंशन किया हुआ, थीटा भी मेंशन किया हुआ है. अब हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं. किस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट की इमेज की बात करते हैं, रिफ्लेक्शंस की बात करते हैं. फिर में इस फॉर्म की रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए. तो रिफ्लेक्शन आप दो एक्सिस पर ले सकते हो इसका, एक तो थ्रू द ओरिजिन ले सकते हैं एंड सेकंड वन इज व्हाट, ऑन द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस मींस रियल एक्सिस. तो जो रिफ्लेक्शंस की बात करते हैं वो दो टाइप से यूज करेंगे. विच वन इज थ्रू द ओरिजिन and second one is what, on the x axis. रिफ्लेक्शन मीन्स बेसिकली इमेज. तो आपको कभी इमेज फाइंड आउट करनी हो, रिफ्लेक्शन को क्या समझिए आप, इमेज. तो जब भी आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज फाइंड आउट करनी हो तो वो इमेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, थ्रू इन द डायग्राम. इट्स वेरी इजी. अब देखिए यदि हमने पहला केस किसका है, थ्रू द ओरिजिन. ओरिजिन ये है तो नेचुरली इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ओरिजिन के थ्रू. यदि मैं डॉटेड से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी.
तो दिस इज व्हाट, दिस इज आर, क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव लेंथ का रहता है। चेंज क्या होगा, उसका एंगल चेंज होगा। अब देखिए ये पॉइंट कौन सा मिलेगा आपको, आपको पता है ये नेगेटिव एक्सिस है कि रियल एक्सिस, एंड सेम दिस इज नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, सो दिस पॉइंट इज व्हाट -2, -3। तो आप ध्यान से देखिए ये -2 और -3 इसका मतलब आपने 2 का साइन भी चेंज कर दिया और 3 का साइन भी चेंज कर दिया। तो जब आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको उसकी इमेज फाइंड आउट करनी है, तो इमेज से क्या हुआ, दोनों के साइन चेंज हो गए, और दोनों के साइन चेंज होना क्या मतलब होता है, इट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, जो आप एक्सरसाइज 5.2 में डिस्कस कर चुके हो। सो दिस इज व्हाट, जब आपको इमेज फाइंड आउट करनी हो थ्रू द ओरिजिन, तो आपको जस्ट क्या लेना है, एडिटिव इनवर्स। टेक जस्ट एडिटिव इनवर्स। सो लेट जैसे आपने z इक्वल टू क्या लिया, 2 + 3 आयोटा। इफ यू टेक additive inverse means do multiply with negative, so additive inverse z is what, negative z, so in this case what, -2 + 3 iota, it gives us what, -2 -3 iota, and this is the image। तो जब भी आपको किसी पॉइंट की इमेज फाइंड आउट करनी हो थ्रू द ओरिजिन, तो आप क्या यूज कर सकते हो, उसका एडिटिव इनवर्स यूज कर सकते हो, तो आपको क्या मिल जाएगी, उसकी इमेज मिल जाएगी थ्रू द ओरिजिन। बट जब आप बात करते हो इसकी इमेज ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे इसकी इमेज कहाँ बनेगी, लुक एट दिस, ये पॉइंट है आपका, तो इसकी इमेज आपको कहाँ बनेगी, एक्स एक्सिस ये है आपकी, तो इसकी इमेज आपको यहां बनेगी, इस पॉइंट, ये भी इमेज थी, एंड दिस इज ऑल्सो इमेज। आपको समझ आ रहा होगा कि इमेज क्या है, थ्रू द ओरिजिन और थ्रू द एक्सिस। आप देखिए इसकी इमेज कहाँ बनी, यहाँ चेंज क्या हुआ, देखिए एक्स इस दिस डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव रियल एक्सिस, तो आपको पॉजिटिव ही मिल रहा है, बट इमेज क्या बन गई, नेगेटिव में, तो इमेजिनरी एक्सिस व्हाट, -3, सो यू गॉट 2, -3, ये भी क्या आपकी इमेज है ऑन द किस पे, एक्स एक्सिस पर। तो चेंज देखिए क्या हुआ, ये +2, ये +2, ये 3, ये -3, ओनली चेंज क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट। तो आपका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ। तो इमेजिनरी पार्ट चेंज को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट, आप ये भी रीड कर चुके हो। सो जब किसी पॉइंट की आपको इमेज निकालनी हो ऑन द एक्स एक्सिस, तो आपको क्या लेना होगा, जस्ट कॉन्जुगेट। तो इसके लिए आपको जस्ट क्या करो, टेक कॉन्जुगेट। सो z आपका 2 + 3 आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 3 आयोटा। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्या, कि आपको जस्ट चेंज द साइन करना है ऑफ इमेजिनरी पार्ट एंड यू गॉट द कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि आपको यदि इमेज निकालनी हो, तो इमेज निकालने के 2 मेथड्स है, एक तो इमेज ऑन थ्रू द ओरिजिन एंड सेकंड वन इज व्हाट, इमेज थ्रू द एक्स एक्सिस। सो जब आप इमेज यूज कर रहे हो थ्रू द ओरिजिन, तो आप जस्ट उसका एडिटिव इनवर्स लेके उसकी इमेज निकाल सकते हो, और जब आप उसकी बात करते हो एक्स एक्सिस पर इमेज की, तो वो क्या होता है, जस्ट उसका एडिटिव कॉन्जुगेट, तो आपको जस्ट उसका इमेजिनरी पार्ट चेंज करना है और यू गॉट द इमेज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, तो इसको भी प्लीज माइंड में सेट करिए, क्योंकि ये सारी चीज क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो प्लीज मेक अ नोट। Now our next topic is what, polar representation। अब आपको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है, आपको कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा और आपको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है। कैसे करेंगे, इट्स क्वाइट इजी, आप सब चीज रीड कर चुके हो, लेकिन हम उसके कुछ आइडेंटिटीज निकालेंगे कि कैसे ये फॉर्म आई। तो वो चीज समझने के लिए मैं दोबारा से ड्रॉ करने जा रहा हूँ आर्गन प्लेन। दिस इज पॉजिटिव रियल एक्सिस, दिस इज नेगेटिव रियल एक्सिस। This is what, positive real imaginary axis, this is negative imaginary axis। तो अब मैं सिंपल सा कोई कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू, सॉरी इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए अब मुझे पॉइंट लेना है। अब मैं इसको जनरलाइज निकालना चाहता हूँ, तो जनरलाइज में x और y की वैल्यू को पता नहीं होगी, तो इन टर्म्स ऑफ मैं क्या ले लेता हूँ, x एंड y, या सिंपली a प्लस आयोटा भी कर लीजिए, a प्लस आयोटा b।
अब आपको पता है a प्लस आयोटा b क्या है, ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज व्हाट कार्टेशियन फॉर्म, एंड सेकंड वन इज व्हाट रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसमें आपको पता है रियल पार्ट इसमें आपका कितना है, इज a एंड इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट b। तो आपको पता है रियल एक्सिस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आपको कितने स्टेप जाना है, a स्टेप, एंड इमेजिनरी एक्सिस में कितने स्टेप जाना है, b स्टेप। लेकिन आपको पार्टिकुलर डिफाइन तो नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ मार्किंग तो नहीं कर रहा, या सिंपल से ऐसी मार्किंग करते हुए मैं दिखा देता हूँ, ऐसी मार्किंग करते हुए कि किसी ना किसी पॉइंट पर a वैल्यू मिलेगी आपको, और फिर आपको किस पॉइंट पे जाना है, b। सपोज करो आपको ये पॉइंट मिल गया, अब ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, a और b। तो ये आपका एक पॉइंट है जो a और b रिप्रेजेंट कर रहा है, और a क्या चीज है, a है लेंथ या डिस्टेंस कवर्ड इन x डायरेक्शन, रियल डायरेक्शन, एंड b इज व्हाट द डिस्टेंस कवर्ड इन y डायरेक्शन। सो दिस इज व्हाट, ये आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज 90 डिग्री एंगल। तो दिस बेसिकली व्हाट, दिस इज द लेंथ ऑफ इन पॉजिटिव एक्सिस या रियल एक्सिस में, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज b, दिस इज लेंथ इन इमेजिनरी एक्सिस। तो आपको ये पता चल गया कि कितना डिस्टेंस आपने रियल एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल करा है और कितना डिस्टेंस आपने इमेजिनरी एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल करा है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। सिंपली 2 और 3 को आप कंसीडर करके समझ सकते हो कि 2 आपका एक्स डायरेक्शन में हो गया, 3 आपका वाई डायरेक्शन में हो गया। इट्स क्वाइट इजी। अब आपको समझना क्या है उस चीज को समझिए। आपको पता है आर्गेंट प्लेन की बात कर रहे हैं, पोलर फॉर्म की मतलब आर्गेंट प्लेन, तो इसमें क्या करना होता है, ओरिजिन को मीट कराना होता है किससे, पॉइंट से। तो ओरिजिन आपका ये है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0, तो इसको मीट करा दीजिए, दिस इज व्हाट r। अब इसको समझिए कि क्या है, यदि ये डायमेंशन b है तो सिंपली ये डायमेंशन भी क्या होगी, b ही रहेगी। तो मैं इसको यहां पे b लिख सकता हूं, दिस इज व्हाट b। अब मुझे अपना ये जो a और b की वैल्यू है वो किसकी टर्म्स में निकालनी है, r और थीटा की टर्म्स में, क्योंकि वही मेरी क्या होती है, पोलर फॉर्म होती है। अब देखिए मैं इसको नाम दे देता हूं, ये o है, ये p है, इसको नाम दे देता हूं q। तो हमारे पास यहाँ एक ट्रायंगल बन गई, इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, OQP, OQP। अब हमें a फाइंड आउट करना है और b फाइंड आउट करना है। आप सिंपली साइन थीटा और कोस थीटा का फॉर्मूला याद रखिए, उससे आप सिंपली निकाल सकते हो। साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहां लिख देता हूं साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सेम में कोस थीटा की बात करते हैं, कोस थीटा इज व्हाट, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यही होता है। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, जो ये वर्टिकली हाइट होती है इसी को क्या कहते हो, परपेंडिकुलर, और नीचे वाले को क्या कहते हो, बेस, और ये साइड क्या बन गई, हाइपोटेन्यूज। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की यदि हम बात करते हैं तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, b, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, r। दिस इज व्हाट साइन थीटा। सेम हियर कोस थीटा इज व्हाट, बेस इज व्हाट, बेस आपका क्या हो गया a, हाइपोटेन्यूज r। तो इसको सोल्व करते हो, a की वैल्यू क्या मिल गई आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, a इक्वल टू r cos थीटा, एंड सेम यहां से सोल्व करते हो तो b इक्वल टू व्हाट, r sin थीटा।
तो आपको ए की वैल्यू भी मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, किसके टर्म्स में मिल गई, आर और थीटा के टर्म्स में, और आपका आंसर आर और थीटा के टर्म्स में क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है। सो प्लीज मेक अ नोट बिकॉज वी ऑलरेडी डन। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज मेक अ लुक, आपको बी की वैल्यू मिल गई आर साइन थीटा और ए की वैल्यू मिल गई आर कोस थीटा। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब देखिए ध्यान से, जेड इक्वल टू क्या था आपका, ए प्लस आयोटा बी, और ए की वैल्यू क्या है आपकी, सॉरी ए की वैल्यू इज व्हाट, आर कोस थीटा। तो मैं ए को रिप्लेस कर सकता हूँ आर कोस थीटा प्लस आयोटा एज इट इज, एंड द वैल्यूज ऑफ बी इज व्हाट, आर साइन थीटा। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ आर साइन थीटा। अब इसमें से देखिए ध्यान से, आर कॉमन आउट हो सकता है, सो आई एम गोइंग टू टेक कॉमन, जेड इक्वल टू व्हाट, आर कॉमन आउट, तो दिस बिकम्स कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो ये कुछ और नहीं है, दिस इज व्हाट, दिस इज पोलर फॉर्म। ये आपकी क्या है, पोलर फॉर्म है। सो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं इसको डायरेक्टली रिलेट कर देता हूं कार्टेशियन में, पोलर में। कार्टेशियन व्हाट, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड कार्टेशियन फॉर्म क्या होती थी, ए प्लस आयोटा बी। सो दिस इज ए प्लस आयोटा बी। क्योंकि आप फॉर्म को चेंज कर रहे हो, क्योंकि फॉर्म को चेंज करने से कॉम्प्लेक्स नंबर वेरी नहीं करता, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो वही रहेगा। तो ये कौन सी फॉर्म थी, कार्टेशियन, और आपने पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया, तो आंसर तो वही रहेगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू इक्वल है, आर कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, दिस इज व्हाट, पोलर फॉर्म। तो आप इसको याद रखिए, जब भी आपको कन्वर्ट करना हो कार्टेशियन रेक्टेंगुलर फॉर्म से, कार्टेशियन क्या दिया, या रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो आप याद रखिए ये कार्टेशियन रेक्टेंगुलर फॉर्म है, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप इसी की हेल्प से आप कन्वर्ट करोगे। आंसर इसमें हो तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म। यदि आर और थीटा की टर्म्स में, तो उसको सोल्व करके आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दिस इज रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन फॉर्म। और याद रखिए कि ये फॉर्म को आप एक तरीके से और भी लिख सकते थे, आपको बताया मैंने कौन सी फॉर्म होती है। इसको आप क्या लिख सकते हो, आर एंगल थीटा। तो पोलर फॉर्म को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये फॉर्म और ये फॉर्म सेम होती है, बस रिप्रेजेंटेशन का वे डिफरेंट होता है। तो आई होप आपको चीज समझ आई होगी कि पोलर फॉर्म क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, और कैसे हमने इसको यूज किया। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज मेक अ रिमेंबर नोट यदि आप कर रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो प्लीज मेक अ लुक। आपको क्या फाइंड आउट करना है, मॉडुलस और एम्पलीट्यूड फॉर्म। यदि आपको डायरेक्ट फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, प्लीज मेक अ नोट। फिर मैं अगेन से ड्रॉ करने जा रहा हूँ आर्केड प्लेन, क्योंकि इसी से आपको क्या मिलेगी, आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी। दिस इज पॉजिटिव रियल, नेगेटिव रियल, दिस इज पॉजिटिव इमेजिनरी, एंड दिस इज व्हाट, नेगेटिव इमेजिनरी। आप ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत इजी है। सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। क्वाड्रेंट क्या होता है, आपको 4 क्वाड्रेंट पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमेशा आप किस डायरेक्शन की बात करते हो, एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज में एंगल हमेशा पॉजिटिव हो रहे हैं। अब यहाँ नोट भी कर लीजिए, जब आप मूव करते हो, दिस इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे जो आपका एंगल होता है, एंगल मीन्स थीटा, उसको क्या लेते हो हमेशा, पॉजिटिव। लेकिन जब आप मूव करते हो अपोजिट, लाइक दिस, ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, क्लॉकवाइज। एंड क्लॉकवाइज में एंगल हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पॉजिटिव और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो आप इस चीज को याद रखिए जब भी आप मूव स्टार्ट करते हो, क्योंकि आप लेवल के वजह से आपका 11, सो आपको आप 10th लेवल तक के कॉन्सेप्ट को थोड़ा छोड़ना होगा, क्योंकि आपको अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग और वाइड करना होगा। तो मूवमेंट भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस। यदि आप मूव करते हो इन एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको एंगल जो है वो पॉजिटिव कंसीडर करके चलते हैं, और जब इधर मूव करते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल को क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव।
सो जब भी हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की तो हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ताकि एंगल को क्या यूज करें, पॉजिटिव। सो आपको पता है कि यहाँ पे जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। दिस इज व्हाट फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड क्वाड्रेंट का मतलब था क्वाड का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ओवरऑल यदि आप एक सर्कल लगाते हो तो टोटल कितने डिग्री का एंगल कवर होता है, 360 डिग्री का। तो 360 को यदि 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो 1 पार्ट कितने का हुआ, 90 डिग्री का। इसका मतलब क्वाड्रेंट कितने बने आपके, 4। दिस इज 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट्स है और हर क्वाड्रेंट कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का। तो हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का ही होगा। लेकिन अब आपको ध्यान से समझना है, जब आप प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करते हो तो कैसे फाइंड आउट करनी है, और रियल और इमेजिनरी आपको पता कैसे रहेगा कि जो आपका थीटा है वो कहाँ पे लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे बात करते हैं, इस डायरेक्शन में रियल एक्सिस पॉजिटिव है, आपको हमेशा कैसे लिखना है, रियल डिफाइन करना है और इमेजिनरी डिफाइन करना है, 2 चीज डिफाइन करनी है आपको। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे रियल क्या है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे रियल एक्सिस भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी एक्सिस भी पॉजिटिव है, क्योंकि अपवर्ड की बात कर रहे हैं। यदि मैं इस क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे देखिए रियल तो पॉजिटिव है लेकिन y एक्सिस नेगेटिव हो गई, तो y का मतलब क्या है, इमेजिनरी। तो ये क्वाड्रेंट में क्या बन गया आपका, रियल एक्सिस तो आपकी पॉजिटिव ही रहेगी लेकिन इमेजिनरी एक्सिस क्या बन गई, नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में रियल एक्सिस नेगेटिव हो गई लेकिन आप ऊपर ही हो, तो ऊपर क्या होती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो इसमें क्या बन गया आपका, रियल एक्सिस तो आपकी नेगेटिव हो गई और इमेजिनरी एक्सिस इज व्हाट, पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में क्या हुआ, रियल एक्सिस भी आपकी नेगेटिव है और इमेजिनरी एक्सिस भी क्या है, नेगेटिव। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, आप उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को चेक कर सकते हो। यदि रियल पार्ट दोनों पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव, तो आपका क्वाड्रेंट 1 आएगा। यदि रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट इज नेगेटिव, तो क्वाड्रेंट क्या, 4th। यदि रियल पार्ट नेगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव, तो क्वाड्रेंट मिलेगा आपको 2nd। और यदि रियल एक्सिस इज नेगेटिव, इमेजिनरी एक्सिस भी नेगेटिव, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, 3rd। तो आप इससे क्वाड्रेंट पता लगा सकते हो। अब क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग थीटा, अब थीटा किस में लाई करेगा उसको ध्यान से देखिए। अब यहां से जब हम बात करते हैं तो एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और यदि हम बात करते हैं डिग्री में और दूसरा रिप्रेजेंटेशन होती है रेडियन, तो यदि मैं डिग्री की बात करता हूं तो 0 से 90, ये एक्सिस क्या हम स्टार्ट होती है, ये 0 है और ये 90। तो यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पॉजिटिव, इमेजिनरी पॉजिटिव है, तो आपको जो थीटा मिलेगा वो थीटा क्या मिलेगा आपको, हमेशा 0 से लेकर 90 के बीच में मिलेगा आपको। इंक्लूड 0 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही काउंट होगा आपका। आई होप आपको समझ आया होगा। और जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रेडियन की, तो आपको रेडियन को आपको लिखना पता हो तो ये लिख सकते हो, 0 डिग्री को हम 0 लिखते हैं रेडियन में, 90 डिग्री को आप π/2 लिखते हैं, 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं, 30 डिग्री इज व्हाट, π/6, 45 डिग्री इज व्हाट, π/4। इट्स वेरी सिंपल। तो आप इसको सिंपल लर्न कर सकते हो। लर्न करने का मतलब और भी जिस टेक्निक है, पाई को आप 180 मान के चलिए। अब 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो 90, तो आपको 90 मिल गया। 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो 60 मिल गया। 180 को 6 से डिवाइड करोगे 30, 180 को 4 से डिवाइड करोगे 45। इसका मतलब क्या है, आपको कोई डिग्री में एंगल दिया जाए तो आप सिंपली उसको रेडियन में चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग दिस। सो आई होप आपको चीज समझ आई होगी। तो 0 से 90 का मतलब क्या है, यदि मैं इसको रेडियन में लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 0 to π/2। तो जब भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसमें रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट इज आल्सो पॉजिटिव, तो आपको थीटा क्या मिलेगा, 0 और π/2 के बीच में मिलेगा आपको। सेकंड वन इज व्हाट, यदि आपका क्वाड्रेंट सेकंड में आ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको क्या मिलेगा। सो प्लीज मेक अ नोट 1 बाय 1 नोट करते रहिए ताकि इसको कॉम्प्लेक्स ना बन दिखाई दे आपको। प्लीज मेक अ नोट। नाउ कम ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड। अब देखिए 0 से ये 90 है, तो ये 90 से कितने डिग्री का होगा, 180 के बीच में होगा।
तो इस क्वाड्रेंट में जो एंगल मिलेगा आपको वो कहां से कहां मिलेगा, 90 से लेकर 180 के बीच में। आपको पता है 90 मतलब 180/2, तो ये 180/2 90 भी देगा आपको। और ये क्या है, पाई, पाई का मतलब 180। तो आप किसकी क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, तो आपका एंगल किस में मिलेगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। और कौन सा एंगल मिलेगा, पॉजिटिव। यहां भी आपको एंगल पॉजिटिव मिलेगा, यहां भी आपको एंगल क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। अब बात करते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट की। अब फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए कैसा होता है, क्योंकि जैसे आप यहाँ मूव कर रहे थे ये सिमिलर मूवमेंट हो सकती है, एंगल सेम टर्म हो सकता है, लेकिन यदि हम मूवमेंट ही अपोजिट करते, अभी मूवमेंट किस डायरेक्शन में थी, एंटी क्लॉकवाइज, यदि हम मूवमेंट कर दें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका मतलब हमें अब 180 से बड़े एंगल लेने की जरूरत नहीं, हम एंगल को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। तो नेगेटिव लेके आप इन क्वाड्रेंट को डिफाइन कर सकते हो। आई होप आपको समझ आएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में एंगल इज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में एंगल इज नेगेटिव। तो मैं मूव कर रहा हूँ क्लॉकवाइज में, तो यदि मैं क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट करता हूँ तो पहले कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ। और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते तो पहला कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट। तब देखिए अब मैं मूवमेंट यहाँ कर रहा हूँ, यहां से यहां पे, तो ये डिग्री कितनी है, 0, और ये कितनी है, -90, क्योंकि आप नीचे जा रहे हो। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो 0 से लेकर क्या वहां आता है, -90। तो 0 से -90 के बीच में क्वाड्रेंट है, कोई वैल्यू है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप चेक कर सकते हो यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल वैल्यू पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट इज नेगेटिव, तो जो आपका थीटा आएगा वो थीटा तुम्हारा नेगेटिव आएगा और 0 से 90 के बीच में आएगा। इट्स वेरी सिंपल। नाउ लुक एट दिस फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये वैल्यू कितनी है, -90, और ये वैल्यू कितनी है, -180, क्योंकि आप मूवमेंट किस डायरेक्शन में कर रहे हो, क्लॉकवाइज। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कितने डिग्री का हो गया, -90 से लेकर -180, -90 से लेकर हाउ मच, 180। सो देखो सेम ही एंगल है, बस क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव एंगल थे क्योंकि क्लॉकवाइज मूव कर, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे, यहाँ पे एंगल क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि कैसे एंगल आपको निकाल सकते हो, कि कितने डिग्री का आपका एंगल आएगा, वो आप इसके अकॉर्डिंग पता लगा सकते हो कि आपका आंसर क्या आएगा, वेरीफाई भी कर सकते हो। इट्स क्वाइट इजी। तो प्लीज मेक अ नोट, नाउ प्लीज मेक अ लुक। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हो तो इसके लिए डायरेक्ट कैसे निकाल लेते हो। इट्स वेरी इजी। कैसे करना है, बोर्ड एग्जाम में थोड़ा टफ होता है क्योंकि आपको हर स्टेप को शो करना होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट ले सकते हो। क्या शॉर्टकट है इसको ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, दिस इज पॉजिटिव रियल एक्सिस, this is negative real axis, this is positive imaginary axis and this is negative imaginary axis। अभी हम बात करते हैं किसकी, थीटा की। सबसे पहले मैं थीटा को डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि मॉडुलस तो बहुत सिंपल होता है फाइंड आउट करना। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल 1। सपोज करा z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, सॉरी मैं इस टर्म्स में ले लेता हूँ, आयोटा में a + आयोटा b। ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब लुक एट दिस, रियल पार्ट क्या है इसका, रियल पार्ट z इक्वल टू a मतलब आपको पॉजिटिव मिल रहा है। सेम यदि मैं इसकी इमेजिनरी पार्ट की बात करता हूँ, इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट, b इज अगेन पॉजिटिव। तो आपको पता है जब यहाँ पे रियल एक्सिस पॉजिटिव होती है, इमेजिनरी एक्सिस पॉजिटिव होती है, क्वाड्रेंट कौन सा होता है, फर्स्ट। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका एंगल लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है एंगल कहां से कहां तक होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो आप अपना आंसर टैली कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 से 90 के बीच में ही आएगा। आई होप आपको चीज समझ आई होगी। अब इसको निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है जिससे डायरेक्ट निकाल सकते हो, थीटा। प्लीज मेक अ नोट, प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज मेक अ लुक। आपको ये थीटा निकालना होता है, थीटा डायरेक्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। इससे आप डायरेक्ट आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक सिंपल तरीके से ले लेता हूं, दैट
या z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको इसका आर्गुमेंट निकालना है। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। ठीक है, दिस फॉर्मूला फॉर आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। इसको क्या कहते हो, थीटा। डायरेक्ट पुट करिए। सबसे पहले आपको रियल पार्ट पता होना चाहिए। आपका रियल पार्ट कितना है इसमें, रियल पार्ट इज 1 एंड व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट इज रूट 3। तो आपको रियल पार्ट भी मिल गया, इमेजिनरी पार्ट भी मिल गया। अब आप इसको जस्ट पुट करिए फॉर्मूले में। फॉर्मूला इज दिस, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, टेंजेंट इनवर्स imaginary part is what, root 3, and real part is what, 1. So we get what, tangent inverse root 3. अब आपको क्या देखना है, आपको ये सोचना है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको पता है। अब ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पे देखिए कि टेंजेंट की वैल्यू रूट 3 कौन से एंगल पे होती है, और आपको पता है टेंजेंट 60 कितना होता है, रूट 3 होता है। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 60 डिग्री। सो आंसर इज व्हाट, थीटा इज 60 डिग्री। और आपको आंसर टैली करना है कि ठीक है या नहीं है, चेक इट, पॉजिटिव 60। और आपको पता था यहाँ पे रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो एंगल क्या आएगा, 0 से 90 के बीच में आएगा। और आपका आंसर कितना आ रहा है, 60। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। तो ये दिस इज द शॉर्टकट वे होता है टू फाइंड आउट द आर्गुमेंट। बट अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा इन अवर एक्सरसाइज में। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ आवर सेकंड केस। सेकंड केस में क्या कौन सा क्वाड्रेंट चूज कर रहा हूं मैं, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में पता है आपको रियल पार्ट क्या होता है, नेगेटिव, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब रियल पार्ट इज नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट, पॉजिटिव। तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, रियल पार्ट इज नेगेटिव, इसको बना देता हूं z इज इक्वल टू नेगेटिव a प्लस आयोटा b। अब नेगेटिव a मींस रियल पार्ट आपको क्या मिल गया, नेगेटिव a, so this becomes what, negative, and imaginary part is again beta, positive। इसका मतलब क्वाड्रेंट हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। और आपको सेकंड क्वाड्रेंट में पता है आपको थीटा कितने डिग्री का मिलता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में, या सिंपली क्या लिख सकते हैं उसको, π/2 से लेकर पाई के बीच में, 90 से लेकर 180 के बीच में आपको एंगल मिलेगा। कैसे मिलेगा, एग्जांपल देखिए, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, लेट z इज व्हाट, -1 प्लस रूट 3 आयोटा। नाउ द रियल पार्ट इज ऑफ z इज, दिस इज -1 एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज व्हाट, रूट 3 पॉजिटिव। सो आपको रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव, तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। इट्स वेरी इजी, फॉर्मूला आपको पता है, थीटा का फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। पुट करिए सारी वैल्यू, इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट, रूट 3 एंड रियल पार्ट इज व्हाट, -1। तो आपका आंसर कितना मिला, यू गोट, मैं यहां लिख देता हूं या यहां पे ही लिख देता हूं, चेक करिए, टेंजेंट इनवर्स रूट 3 अपॉन में -1, इट गिव्स -√3। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या आएगा उसको देखने के लिए आप सिंपल देखिए, √3 कौन से एंगल पर वैल्यू होती है, अभी करा 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर। तो ये आपका क्वाड्रेंट सेकंड आता है तो एंगल आपको पता है कहां से कहां आएगा, 90 से लेकर 180 के बीच में। तो आपको कैसे निकालना है, सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर आता है 180 माइनस थीटा, ये रूल अप्लाई करना है। इसका मतलब आपका यहाँ पे थीटा कितने डिग्री का आया, 60 डिग्री का, क्योंकि √3 किस पे होती है, टेंजेंट की वैल्यू 60 पे होती है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 180 माइनस थीटा। इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। तो आपका आंसर कितना है, 120 आपका आंसर है। और इसको दूसरी फॉर्म में यदि आपको रिप्रेजेंट करना है रेडियन की फॉर्म में, तो रेडियन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा रूल क्या होता है, π/180 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि मैं 120 को π/180 से मल्टीप्लाई करता हूं
रूल आप याद रख लीजिए, यदि आपको नहीं पता हो कि डिग्री हो और आपको रेडियन में कन्वर्ट करना हो एंगल को, तो कैसे करते हैं, उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पाई बाय 180 से। अब देखिए 62 जा 120, 63 जा 180, तो आपको आंसर कितना मिल गया, 2 इंटू पाई 2 पाई डिवाइड बाई 3। तो 120 को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाय 3 भी लिख सकते हो। तो आपका आंसर या तो इस फॉर्म में गिवन होगा डिग्री में या रेडियन के फॉर्म में। तो रेडियन के फॉर्म में है तो 2 पाई बाय 3 आंसर मिलेगा, और डिग्री के फॉर्म में है तो आपको 120 डिग्री मिलेगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो नोट करिए इसको, क्योंकि ये टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज मेक अ नोट विद एग्जाम्पल ऑल्सो। नाउ लुक एट द थर्ड केस। थर्ड केस मतलब अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है रियल एक्सिस भी नेगेटिव है और इमेजिनरी एक्सिस भी क्या है, नेगेटिव है। तो मैं लेट ले लेता हूँ, लेट z इज व्हाट, नेगेटिव a माइनस नेगेटिव b। इसका मतलब रियल पार्ट भी नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव। सो इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट एग्जांपल -1 माइनस √3 आयोटा। अब देखिए ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना हुआ इसका, -1, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट, -√3। तो दोनों वैल्यू क्या है, नेगेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब क्वाड्रेंट आपका कौन सा लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और आपको थर्ड क्वाड्रेंट का पहले से रूल पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां लाई करता है, -180 से लेकर -90 के बीच में। यही होता है। यदि मैं इसको डिग्री में लिखूँ तो, और यदि इसको मैं रेडियन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, -π से लेकर π/2 नेगेटिव। इसका मतलब आपको आंसर जो मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा। तो इट्स वेरी इजी है। आपको करना क्या है, आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट आएगा। आपको पता चल गया कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट को लिखने का क्या तरीका होता है, प्लीज मेक अ नोट वेरी केयरफुली। थर्ड क्वाड्रेंट को लिखा जाता है, यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिखाई देगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे एंगल आता है, याद रखिएगा, -180 डिग्री प्लस थीटा। इस टाइप से आप एंगल निकाल सकते हो, माइनस का 180 प्लस थीटा। अब कैसे करना है देखिए ध्यान से। हम बात करते हैं अपने थीटा की। थीटा इज व्हाट, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। नाउ व्हाट्स द इमेजिनरी पार्ट इज -√3 and real part is what, -1. So it gives what, sorry, I write something missing, tangent inverse -√3 divided by -1. So we get what, tangent inverse √3। और √3 अगेन किस पे होता है, 60 डिग्री पर। इसका मतलब आपको थीटा कितने डिग्री का मिल गया, 60 डिग्री। लेकिन आपका आंसर 60 डिग्री नहीं है, आपका आंसर क्या है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लिखते हो, -180 प्लस थीटा। तो आपका आंसर क्या आएगा, योर आंसर इज व्हाट, -180 प्लस 60। इसका मतलब कितना आ गया, -120 डिग्री। तो आपका आंसर है -120। और आपको पता है 120 को क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाय 3। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो, -2 पाई बाय 3। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, -180 प्लस थीटा। तो आप क्वेश्चनों को कभी भी गलत नहीं करेंगे in your competitive exams as well as in your board exam. So please make a note, case third. Now look at the case fourth. कौन सा क्वाड्रेंट की बात करेंगे अब हम, फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ में क्या होता है, रियल पॉजिटिव बट इमेजिनरी नेगेटिव। रियल तो क्या होता है, पॉजिटिव, और इमेजिनरी इज व्हाट, negative. So I am taking an example. Let z is equal to what, 1 minus √3 iota. It means real part of the complex number is what, 1, and imaginary part of the complex number is what, -√3. और आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक आता है, 0 से लेकर -90 के बीच में, या 0 से लेकर -π/2। इसका मतलब आपका एंगल नेगेटिव आएगा। करिए, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, टेंजेंट इनवर्स
imaginary part divided by real part. Now this is what tangent inverse. Imaginary part is what negative root 3 and real part is what 1. और आपको पता है कि रूट 3 किस डिग्री पर एंगल की वैल्यू होती है 60 डिग्री. टेंजेंट 60 कितना होता है रूट 3. तो आपका आंसर कितना आएगा 0 से 60. इसका मतलब आपको सिंपल क्या करना है नेगेटिव थीटा. तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा आंसर इज नेगेटिव थीटा. तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60. तो आपका आंसर कितना हुआ -60. तो ये आपका आंसर हो गया -60 डिग्री या इसको π/3 भी लिख सकते हो नेगेटिव का. तो नेगेटिव π/3 इट्स ऑल्सो आंसर. तो याद रखिएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा क्या आएगा आपका हमेशा नेगेटिव. सो आपका आंसर किस में लेना है नेगेटिव. सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी. ये सारी हेल्प करेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी और वट एवर यू अप्लाई दिस. क्योंकि ये टॉपिक आपका सिर्फ 11th लेवल तक की लिमिट नहीं है. ये आपका आप हायर मैथमेटिक्स रीड करोगे ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में वहाँ भी टॉपिक मिलेगा. तो इस टॉपिक्स को तो कभी भी आपको भूलना नहीं है. तो दिस टॉपिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज मेक अ नोट. नाउ मॉडुलस आप पहले से रीड कर चुके हो. मैं दोबारा भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ. यदि जेड आपका a प्लस आयोटा b है तो इसका मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं. मॉडुलस इज रिप्रेजेंटेड बाय या तो जेड को पहले लाइन से या इसको क्या लिख सकते हो सिंपली r से भी लिख सकते हो. तो क्या फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट्स या सबसे पहले कह सकते हो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. तो उसका स्क्वायर रूट करने से आपको डेफिनेटली क्या मिल जाएगा आंसर. सो आंसर इज व्हाट रियल पार्ट इज व्हाट a स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट b. So answer is what r is simply a square plus b square का square root. For example, let z is equal to 2 minus 3 iota. आपको फाइंड आउट करना है इट्स मॉडुलस. सो मॉडुलस का दूसरा नाम होता है मैग्नीट्यूड. तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको मैग्नीट्यूड और मॉडुलस में क्या डिफरेंस है. मैग्नीट्यूड इज सेम एज मॉडुलस. फॉर्मूला इज व्हाट स्क्वायर रूट रियल पार्ट. आपको पता है real part of complex number is what in this case 2 and imaginary part of the complex number in this case is what -3. तो आपको साइन भी यूज करना है. so real part is what 2 square and imaginary part is -3 square. so what's the answer 4 plus 9 which is equal to √13. और मैग्नीट्यूड है तो आपको हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव. नोट कर लीजिएगा हमेशा magnitude is always positive. So ये कॉन्सेप्ट किसका था मॉडुलस का था. सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी. सो प्लीज मेक अ नोट. तो आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा. ये लेक्चर क्या था बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए था रिगार्डिंग योर कॉम्प्लेक्स नंबर. अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.4 इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. सो इस वीडियो को जब तक देखते रहिए जब तक आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता. क्योंकि यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 5.4 एक्सरसाइज खुद ही कर सकते हो विदाउट माई हेल्प. सो ट्राई टू डू फाइंड आउट द क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 5.4 फ्रॉम द एलिमेंट मैथमेटिक्स एंड इफ यू आर डूइंग फ्रॉम द NCERT देन ट्राई टू डू सॉल्व एक्सरसाइज 5.3. इट्स क्वाइट इजी. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माय चैनल गौरव गुप्ता मैथ क्लासेस as you much can do. So we will meet very soon with a take a new video very soon. Thank you once again.